phi and intersection. Yes. Definition के बारे में हमने बात की थी. And then we talk about symbol. Then yes type of sets बात की थी. हाँ. ओके, टाइप ऑफ सेट कौन कौन बताएगा? यस, महेश. सेट. finite, infinite, null. यस, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट. और बताओ? Equality set. इक्वल सेट. यस. और मैम सिंगलटन. सिंगलटन सेट. सबसेट. पावर सेट. पावर सेट बताया था मैंने आपको. यूनिवर्सल सेट. सेट्स, सेट ऑफ सेट्स. यूनिवर्सल, यस, सबसे बड़ा सेट. यूनिवर्सल सेट. कंपैरेबल, नॉन कंपैरेबल के बारे में भी बात हुई थी क्या हमारी? कंपैरेबल, नॉन कंपैरेबल के बारे में भी बात हुई थी? नहीं मैम. नो मैम. Okay. So we talked about the one more thing that is called disjoint set. डिसजॉइंट सेट के बारे में भी बात हुई थी क्या? नो मैम. नहीं हुई. नहीं हुई थी. ओके. तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट. आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए, आपके पास भी नोट्स होने चाहिए. तो ये पर यस, disjoint set. And we also discuss about the comparable, non-comparable. So this is all considered in the type of set. Comparable set and then non-comparable. So बात करते हैं disjoint set की. मैं definition बोलती हूँ, आप लिखिए. Two sets A and B, two sets A and B are called disjoint set. Two sets A and B are called disjoint set when they have no common element. When they have no common element means set A is ABC, for example, and set B is 1, 2, 3. Nothing is common. So if we take A intersection B, it would be 5. Then it is called disjoint. Okay? Disjoint. Disjoint means nothing is common. वेन डायग्राम से भी आप दिखा सकते हो. ये A है और ये सेट B है. It has few elements, but both set are not having common. If they have common, किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन 5 है तो फिर वो डिसजॉइंट सेट है. नो, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल.
So if they have something common in it, then we have A intersection B part. Now what is comparable set? देखिए आप, comparable और नॉन कंपेरेबल. लिखिए, two sets A and B, two sets A and B two sets A and B are said to be comparable if A is a subset of B or B is a subset of A, then they are called comparable. हाँ, मैम आप एक ही बात से एक बार रिपीट कर दीजिए. now I am talking about the comparable set. Comparable set की definition बोल रही हूं मैं. Two sets are called comparable set if A is a subset of B or B is a subset of A. Let's take an example. Let A equals to 1, 2, 3 and B equals to 1, 2, 3, 4. Then in this case, A is a subset of B. Then it is called comparable set. यानी कि दोनों में कुछ कॉमन होगा तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं तो हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे सेट्स को नॉन कंपेरेबल कहते हैं, जो एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकते. देयर इज नथिंग कॉमन इन इट. तो इफ द सेट A इज हैविंग A, B, C and B सेट है E, F, nothing is common in that. So in this case में they are called non-comparable. Non-comparable. अब आप बोलो कि मैं तो फिश की ट्री क्लाइंबिंग कैपेसिटी चेक करूंगा बर्ड के साथ में, तो दिस इज अनमैच्ड. So you can't compare because nothing is common in them. So it is called non-comparable set. So now you can see many type of sets we have talked about: universal set, null set, equal set, singleton set, finite set, infinite set, subset, power set, set of sets, disjoint set, comparable set and non-comparable set. 12 type of sets we have discussed. Now next लिखिए आप topic important sets of numbers. Important set of numbers. First is capital N, set of natural number, starts from 1, 2, 3 dash dash dash. Second, you know W, which is called whole number, 0, 1, 2 and so on. The third one is called set of integers,
which you can represent by Z or I. It is started from -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. Then set of rational number which start, or you can represent in the form of P upon Q, where P and Q belongs to the integers and Q does not equals to 0. So any number which can be represented in the set of P upon, in the form of P upon Q is called rational number. पता है ये बात आपको? This is called rational number set. Fifth, you can say set of real number. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? It is from -infinity to infinity. Okay, this is from -infinity to infinity. नेक्स्ट क्या होगा बता सकते हो आप? irrational numbers. Yes, irrational number is also counted in the real numbers. Complex number सुना है? Complex number denoted by C, x plus iota y, where x and y both belongs to the real number and iota means -1 का root. Complex number, set of complex number. So natural number is a subset of whole number. Whole number is a subset of integers. Integers is the subset of rational number. Rational number is a subset of real number. Real numbers are the subset of the complex number. So these are the very important set of numbers. Now we will talk about the Venn diagram. We have already discussed about the Venn diagram, that it is a graphical representation of the sets where this rectangle or a circle represent the universal set and the small circles in that represent the sets. Small circle represents the set. Suppose this is A set and this is B and C. So we can represent. So इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि A और A, B, C आपस में disjoint है, but B और C में कुछ common है, like that. So anything we can present by this. This is Venn diagram. सबसे पहले Venn diagram एक स्विस मैथमेटिशियन थे यूलर्स, उन्होंने बनाया था सबसे पहले. और ही सेड, स्विस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बताया कि हम किसी भी सेट को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू रिप्रेजेंट एंड वी कैन कलेक्ट डेटा by this and calculate anything from this. So if I ask कि suppose A is 1, 2, 3 and B is 1, 2, 3, 4. Huh? So can you represent this in terms of Venn diagram? Can you represent? Yes, ma'am. बनाओ अपनी कॉपी में.
and then also explain मैम दो सर्कल्स बनेंगे, एक ए को रिप्रेजेंट करेगा, एक बी को, और इंटरसेक्शन के अंदर 1 2 3 आएगा और सिर्फ बी वाले के अंदर 4 आएगा। तो आपका कहना है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसा बोल रही हो? यस मैम, और ये पूरा यूनिवर्सल सब सेट के अंदर आएगा। ठीक है, चलो। तो क्या यहाँ पे लिखने के लिए कुछ है हमारे पास ए में? कैन वी नहीं हैव सम? नहीं है। देन कौन बताएगा कि क्या होगा? मैम एक बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बना दो जिसमें 1 2 3 रहेगा। 4 कहाँ लिख दूं? बाहर। मैम 4 बाहर। यस मैम। ओके, गॉट द पॉइंट। 4 इज आउट ऑफ दिस। तो ये हमारे पास बिकॉज एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सो हमने ये वाला फिगर एक्सेप्ट नहीं किया। दिस फिगर इज एक्सेप्टेबल बिकॉज ओनली यू इज रिमेनिंग इन द सेट बी, और ए में तो कुछ रिमेनिंग है ही नहीं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो जब जब हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी की बात करेंगे एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन वी वुड लाइक दिस। अच्छा चलो, अब तुम एक और चीज बनाओ। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसी के साथ कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्या फिगर होगा? यही तो होगा सेम जो अभी आपने बनाया। यस, यही होगा सेम जो अभी मैंने बनाया। बिल्कुल सही है। Why we are making this? Because A is a subset of B and not equal. यानी कि A जो है वो B से छोटा ही है always. तो when it is small than B, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? B के अंदर ही आ जाएगा। Okay, right. चलो. Now we talk about operations on the sets. We have talked about union and intersection already. Union and intersection. Union means or, intersection means and. If A is having 1 2 and B is 3 4, then we can write A union B 1 2 3 4. And if we want to write intersection of them, because nothing is common in this, so we have 0 or not 0 actually. अभी तुम इससे confuse हो जाओगे. It is null set because nothing is common. This is called operations. Now, if I say A union A is equal to A union A equals to मैम A। yes. Next, A union then मैम A यूनियन नल होगा तो मैम A। A यूनियन नल होगा तो A, लेकिन A यूनियन U है तो A यूनियन U, then it is equal to यूनिवर्सल। yes, it is again universal. Very good. So you can easily understand these few small terms and very easily. Now we talk about the distributive property. कल हमारी बात हुई थी इसको लेकर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिखिए
Distributive property means union over intersection. टू होती है ये. फर्स्ट है union over intersection. A union B intersection C, which is equals to A union B intersection A union C. And the second one is A intersection B union C, which is equal to A intersection B union A intersection C. This is called distributive property 1 and 2. This is union over intersection. Or this is intersection over union. लिखो आप, फिर मैं इसको प्रूव करना बताती हूं. लिखा? मैम हाँ जी. प्लीज रिटर्न बैक टू द स्क्रीन 1 सेकंड के लिए. हाँ 1 सेकंड, मैं ये देखना चाहती हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर. कुछ कम लग रहे हैं आज बच्चे मुझे. क्यों ओनली 11 अटेंडीज आर देयर? आज बच्चे बहुत कम हैं. क्यों कम है? ये सजेशंस मींस दे आर नॉट ज्वाइनिंग, ऐसा है क्या? नमन गुप्ता, आर यू देयर? दिस इज व्हाट? सिर्फ अटेंडीज वाले ही ज्वाइन है. अच्छा, इन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया. ठीक है, बहुत कम बचे हैं लेकिन आज. सो नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल अगेन. यस मैम. लिखो दोनों, फिर मैं प्रूव करना बताती हूँ. और सबसे इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द यूनिट 1 यही है, हाउ टू प्रूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. चले आगे. लिखा आपने? यस. अब मैं आपको प्रूफ, हाँ बेटा, अब मैं आपको प्रूव करना सिखाती हूँ. अभी मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, और फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करना है इसके बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट की. वी वांट टू प्रूव A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C. Is it visible? It is readable? Yes ma'am. Now we want to prove that left hand side is equals to right hand side. But if we see, suppose this is
set S, क्योंकि this is a complete set मान लो, and this is T. So we want to prove S equal to T. It's mean we want to prove the two sets are equal sets. प्रूव करना चाहते हैं, इक्वल सेट प्रूव करना चाहते हैं, तो हमको S के सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, T के सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, तब हम दोनों को कह सकते हैं कि दे आर इक्वल सेट्स। बट हमें तो यहाँ कुछ नहीं पता इनके बारे में, तो हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं S which belongs to set S, and S का मतलब क्या है, this complete, and then we prove that X also belongs to the T, और हम इससे कहते हैं कि S is a subset of T, पहला रिलेशन। फिर हम बोलते हैं कि X belongs to T, और हम उसको दिखाते हैं कि वो S में भी है, और फिर उससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि T is a subset of S, और फिर 1 और 2 से हम कहते हैं from 1 and 2 we say that set 1 is equal to set 2। तो ये स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज टू सेट्स आर ओनली इक्वल व्हेन दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, देन ओनली ए इक्वल टू बी। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का शो करते हैं सबसेट, सेकेंड स्टेप में हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का शो करते हैं सबसेट, और दोनों से कंक्लूजन निकाल के कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको मेरी बात समझ आ गई? You all understand? यस मैम। ओके, चलिए। तो आपको यही स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द यूनिट 1 फॉलो करनी है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि हम क्या करने वाले हैं। और अब मैं इसका रियल में प्रूफ स्टार्ट कर रही हूं। चलिए, तो ये बात तो थी आपके समझने के लिए। नाउ वी आर वर्किंग। सो वर्किंग आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ब्लू से कर रही हूँ, ये सब समझने के लिए था। आपको कहाँ से लिखना है, आपको अब यहां से मेरे साथ फेयरली लिखना है कि ये हमारा स्टाइल होगा प्रूव करने का। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे व्हाट वी वांट टू प्रूव। वी वांट टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे लेट x belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C। एक एलिमेंट ले लिया जो इस पूरे सेट में बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज x belongs to A यूनियन है, यूनियन का मतलब जानते हैं क्या होता है, और x belongs to B intersection C। This implies x belongs to A or x belongs to B and x belongs to C because it is intersection. So this implies x belongs to A or x belongs to B and the x belongs to A or x belongs to B and x belongs to A or x belongs to C. This implies x A और B में है तो उनके यूनियन में भी होगा, and x A और C में है
तो उनके यूनियन में भी होगा, दोनों के बीच में एंड है, सो X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। दिस इंप्लाइज X कहां लेके चले थे हम तो कहां लेके चले थे, जरा बताओ इस पे। तो हमने कहा कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, और इसको हमने 1 नाम दे दिया। कॉपी कर लीजिए इसको। यस, लिखा आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ओके, 1 हो गया। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, और अब हम कहां लेके चलेंगे एक्स को, इस सेट में लेके चलेंगे, और कहां प्रूव करेंगे, इसमें प्रूव करेंगे। सो दैट रिवर्स स्टेप वी फॉलो, और हम इस वाले साइड में एक्स लेके चल के इधर लेफ्ट में प्रूव करेंगे। तो अभी हमने प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। नाउ वी प्रूव राइट हैंड साइड विल बी अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट 4 स्टेप विल बी इन दी रिवर्स ऑर्डर। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल रिवर्स है, तो आई विल चूज सम डिफरेंट पेन so that you can compare and watch. Now let's take x. x belongs to, अभी हम कहां लेंगे, राइट हैंड साइड में। let x belongs to A union B intersection A union C. This implies x A union B में है और x A union C में भी है, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में भी है। x belongs to A union B, इंटरसेक्शन का मतलब एंड x belongs to A union C. अभी हम इसको फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। दिस यूनियन x belongs to A union मतलब और x belongs to B and x belongs to A और x belongs to C। ठीक है, एंड तो ये है ये वाला जो यूनियन है, दिस इज और। x belongs to A union B, x belongs to A और x belongs to B। अब देखो दोनों से ही क्या कंक्लूजन निकल रहा है, x belongs to A, x belongs to A, this implies x belongs to A। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहां पर और है, सो वी राइट हियर और
x belongs to B and x belongs to C, यानी कि x belongs to B intersection C. This or means x belongs to A union B intersection C. This implies A union B intersection A union C is a subset of A union B intersection C. 2. From हाँ बेटा सेकंड लास्ट स्टेप वापस रिपीट कीजिए कैसे. हाँ from 1 and 2 A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C. देखो यहां से दोबारा बताती हूं मैं एक बार, है ना. X belongs to A union B intersection A union C. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा x बिलोंग्स टू A यूनियन B और इस इंटरसेक्शन को क्या लिखा हमने, एंड. ओके, इस इंटरसेक्शन को क्या लिख रहे हैं हम, एंड. देन फिर क्या लिखा, x बिलोंग्स टू A यूनियन C. यहां तक सही है? इज इट ओके? यस मैम. नाउ नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू A यूनियन का मतलब क्या होता है, और यस मैम. x बिलोंग्स टू B. ठीक है, ये कौन सी बात हो गई, ये इसके लिए A यूनियन B के लिए बात हो गई. ओके, ये एंड एज इट इज. अब इसके लिए भी यही बात लिखेंगे हम, सेम टू सेम. यस मैम. दोनों से एक बात तो समझ में आ गई कि x A को तो बिलोंग कर ही रहा है, सो x बिलोंग्स टू A आप ले आए. ओके, ये वाला और आप एज इट इज ले आए. ठीक है, यस मैम. तो अब क्या बचा आपके पास, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू. अब x belongs to B and x belongs to C, that's mean x belongs to B intersection C, because इनके बीच में और है, that we are using union here. अब x कहां लेके चले थे, इस वाले सेट में, और कहां दिखा दिया, इस वाले सेट में. Hence this is a subset of this. इसको हमने 2 कह दिया और 1 और 2 से हमने रिजल्ट लिख दिया कि दोनों ही इक्वल है. क्यों? क्योंकि हम क्या दिखाया, S इज अ सबसेट ऑफ T, और फिर हमने दिखाया T इज अ सबसेट ऑफ S. So these 9 lines you can copy. देखो कितनी लाइन्स है ये, देखो 1 2 3 4, ये 5 है ना, और नीचे से उधर भी 5 लाइन्स है, तो 5 और 5 10 लाइन्स, और 2 लाइन कंक्लूजन के, टोटल 12 लाइन्स. तो इफ दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, यू नीड टू राइट 10 लाइन्स. 5 मार्क क्वेश्चन. अब ऐसे दो पे अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करने के लिए आ गए, तो सिमिलर पैनर पे आप दोनों प्रूव कर सकते हैं, और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज देयर इज नो कैलकुलेशन एट ऑल. ओके, मैं एक बार नीचे स्क्रॉल कीजिए ना. लिख लो तो बता देना, है ना. मैम एक बार जूम आउट करो मैम, सब एक बार में दिखेगा. क्या, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, मैंने फुल स्क्रीन कर रखा है. अभी No, तो जूम का मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा. मैम जूम आउट करने बोला मैंने. जूम आउट भी ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि ये ओके, लेट मी ट्राई. अभी तो आई थिंक स्क्रीन ही विजिबल नहीं है आप तुम्हें.
नो मैम, मैम छोड़ दो मैम इसको। हाँ, वो इधर उधर हो जाए, इससे अच्छा जो चल रहा है उसको चलने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एडिशन प्रिंसिपल, रूल नंबर 1, if A and B are disjoint, disjoint मतलब no common element, disjoint set, then Na plus Nb gives you Na union B. If they are not disjoint, मान लीजिए A है, ये B, इनका यूनियन वाला पार्ट है, intersection part, they have something common in that, and then it is B set and it is A set, then Na union B is equals to Na plus Nb minus Na intersection B. जानते होंगे, ये तो पिछली बार पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट इट इज A यूनियन B यूनियन C, 3 के लिए भी हम कर सकते हैं। ये 3 के लिए है। So you can also so this is common to all 3. This is B intersection C. This is A intersection C. And this is A intersection B.
लिख लिया? So note down the question. लिखो जल्दी से. लिखिए. Right. In a class of 50 students, 30 are studying Hindi and 25 English and 10 are studying both language. How many students are studying either of the language? Ma'am, please repeat. Yes. In the class of 50 students, 30 are studying Hindi, 25 English, 10 are studying both. How many studying either of the language? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. जो आपको फॉर्मूला सिखाया है उसी पे आपको रहना है और यू कैन मेक द डायग्राम एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला. क्या पूछा है आपसे? आइदर ऑफ द लैंग्वेज का मतलब ए यूनियन बी, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. ओके. 30 प्लस 25 minus 10 gives you 45. 45 student is language either of the language. Okay. अब आप ये सब पढ़ना, ये नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी और but you have videos also, so you can go and study from the videos also. Okay. Okay, ma'am.